الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد. اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ ہم لوگ پھر سے خود کو ایک بہت ہی عظیم شان اور بابرکت مہینے کے بہت قریب پا رہے ہیں. رمضان کا ماہ مبارک جس کے قدموں کی چاہ اور آہٹ ہم لوگ سن سکتے ہیں اور عنقریب ہی یہ ماہ مبارک دستک دینے والا ہے جس کی آمد کے ہم منتظر ہیں اور بہت شوق سے منتظر ہیں. اس ماہ مبارک کی بہت ساری خوبیاں ہیں. من جملہ یہ کہ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کو موقع فراہم کرتا ہے، انہیں توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کی اصلاح کریں. ان کو جیسا مسلمان ہونا چاہیے اس انداز کا مسلمان وہ بن جائے. ایمان جو دل کے اندر وہ رکھتے ہیں، سینوں کے اندر محفوظ رکھتے ہیں، اس ایمان کی قدر قیمت کو پہچانے اور اس کے کیا تقاضے ہیں ان کو بھی جانے اور بڑھنے کی کوشش کریں. دراصل یہ ایمان جو ہمارے سینوں کے اندر ہوتا ہے یہ گھٹتا اور بڑھتا ہے. یہ بات ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. ہم سب یہ مانتے ہیں کہ ایمان کے اندر زیادتی اور نمو ہوتی ہے، اسی طرح وہ اس کے اندر کمی بھی آتی ہے، وہ کمزور بھی پڑتا ہے اور بس اوقات ہونے کے باوجود ناپائد بھی ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ہر چند کہیں ہے نہیں، اتنا کمزور ہوتا ہے اور اتنا معمولی اس کی عزت بن جاتی ہے اس بنا پر کہ انسان ایمان کو رکھتا ہے لیکن ایمان کے تقاضے سے وہ بالکل بھی غافل ہوتا ہے، نہیں جانتا ہے کہ اس کا ایمان اس سے کیا چاہتا ہے اور اسے کیا کرنا ہے. شب و روز کی زندگی اسے کیسے گزارنی ہے، اس کو کس طرح کے اخلاق کی پابندی کرنی ہے، اللہ رب العالمین سے اس کو کیسا تعلق و رشتہ بنا کے رکھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس کے انداز میں رکھنا ہے. ان چیزوں سے اس کی زندگی بہت دور ہوا کرتی ہے. اس لیے کہ ایمان تو اس کے دلوں میں سینے کے اندر کسی حد تک موجود ہے لیکن ایمان کے تقاضوں سے وہ غافل ہے. ایمان اس کا بہت کمزور اور مستحیل ہے، اتنا کمزور کہ وہ دراصل نہیں کے برابر ہوتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسلمان شمار کیے جاتے ہیں، مومنین کے معاشرے کے اندر بیچ میں رہتے ہیں. ان کا انتقال ہوتا ہے تو مسلمانوں کے قبرستان میں ان کو دفن بھی کیا جاتا ہے، لیکن ان کی زندگی کو دیکھیں تو مسجد سے دور کی زندگی ہوتی ہے. صدقات و خیرات، زکوٰۃ و روزہ، ان تمام چیزوں سے ان کا کوئی ناطہ نہیں ہوتا. کاروبار کے اندر حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، یعنی ان بنیادی باتوں سے بالکل غافل ہوتے ہیں. صرف اس لیے ان کو مسلمان مانا جاتا ہے کہ وہ مسلم معاشرے کے بیچ میں ہوتے ہیں اور وہ مسلم گھرانوں کے اندر پیدا ہوئے ہیں، لیکن ایمان سے اور اسلام کے کیا تقاضے ہیں اسے وہ بالکل نابلد ہوتے ہیں. اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کثرت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں اور ہم لوگ مسلمان بھی سمجھتے ہیں اور وہ خود کو بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہوتی کسی شخص کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین اس کے ایمان کو تر و تازہ رکھے، اس کو نمو اور بالغی دے. اور یہ تب ہوتا ہے جب انسان کی جانب سے کوششیں ہوتی ہیں، انسان اللہ رب العالمین سے لو لگاتا ہے، اس سے دعائیں کرتا ہے، اس سے مانگتا ہے کہ اللہ تو ہمارے ایمان کو صحیح سالم رکھ، اسے پڑھا دے، اس کے اندر بالغی کی صورت پیدا کر دے، اس کے اندر نمو ہو، اس کے اندر ارتقاء ہو. یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے. اس لیے کہ بندہ وہ جانتا ہے اور ایمان رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین چاہے گا، اس کی مرضی ہوگی، وہ توفیق دے گا، تب ہمیں یہ چیز حاصل ہوگی کہ ہمارا ایمان صحیح سالم بھی ہوگا، اس کے اندر نمو بھی ہوگی، بڑھوتری بھی ہوگی اور وہ ارتقاء کے منازل کو مدارج کو طے کرتا ہوا بلندی تک پہنچے گا. ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا ایزید الایمان وینقص، کیا ایمان بڑھتا اور گھٹتا بھی ہے؟ انہوں نے فرمایا یزید حتی یبلغ علی السماوات، وہ بڑھتا ہے، یقیناً بڑھتا ہے اور اس بلندی تک پہنچ جاتا ہے کہ آسمانوں کی بلندی تک پہنچ جاتا ہے. یعنی اس کے نمو کی، اس کے ارتقاء کی
इसके बुलंद होने की कोई इंतहा नहीं है, इतना बढ़ जाता है कि वो आला आला समावात तक पहुंच जाता है। वयंकुस, और इसी तरह उसके अंदर कमी भी आती है, वो तनज़्ज़ुल का शिकार भी होता है, हत्ता यकून फी अस्फल अस्साफिलीन, यहाँ तक कि वो अस्फल साफिलीन तक पहुंच जाता है। एकदम जो निचली सतह होती है वहां तक जा गिर जाता है, यानी ईमान की एकदम निचली सतह तक वो गिर जाता है। ईमान के तकाज़ों से वो बिल्कुल गाफिल हो जाता है, नहीं पता कि ईमान के तकाज़े क्या हैं, उसका ईमान उससे क्या कुछ चाहता है। इसी तरह इमाम सौरी रहमतुल्लाह को पूछा गया, अयदीद तुम्हारे वैनकुस, यही सवाल उनके सामने भी किसी ने किया, क्या ईमान के अंदर ज्यादती और कमी होती है? उन्होंने फरमाया यज़ीद हत्ता यकून अम्साल जिबाल, वो बढ़ता है और इतना बढ़ता है कि यहाँ तक कि वो पहाड़ों के मानंद हो जाता है। यानी इंसान का ईमान जो सीने के अंदर होता है उसके अंदर इतना नमू और इतनी बढ़ोतरी होती है, इतनी ज्यादती और इजाफा होता है, जो बढ़ते बढ़ते पहाड़ के मानंद बन जाता है। वयंकुस हत्ता ला यफ्क़ह शै, और वो कम भी होता है और कम होते होते इतना कम हो जाता है कि उसका कोई हिस्सा बाकी नहीं रहता। यही वो सूरत होती है जब इंसान सिर्फ नाम का मुसलमान रह जाता है, नाम का मोमिन हो जाता है, लेकिन उसके पास ईमान नाम की कोई चीज नहीं होती है। उन्होंने फरमाया हत्ता ला यफ्क़ह शै, यहाँ तक कि इतना कम हो जाता है, कम होते होते इस पस्ती को पहुंच जाता है कि कुछ भी वो बाकी नहीं रह जाता। इंसान मुसलमान शुमार किया जाता है लेकिन ईमान का शायबा उसके दिल के अंदर नहीं होता है। और जब दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु से ने फरमाया है कि इन्न मिन फ़िक़्हि रजुल अन यअलम अमज़दाद ईमान व मुंतक़िस व इन्न मिन फ़िक़्हि रजुल अन यअलम नफ़क़ात शैतान अन ताक़ी, ये इंसान के लिए जरूरी है, हर शख्स जो ईमान रखता है और ये अक़ीदा रखता है कि ईमान के अंदर ज़्यादती और कमी होती है, उसको ये देखना है, उसकी सूझबूझ ये होनी चाहिए कि वो अपने ईमान की खबर लेता है कि वो ईमान घट रहा है या बढ़ रहा है। ये जब हम ये मानते हैं, हमारा अक़ीदा यह है कि ईमान के अंदर बढ़ोतरी है, ईमान बढ़ता है, बुलंदियों को छूता है और उसी तरह वो घटता भी है, तनज़्ज़ुल का शिकार होता है, पस्ती के अंदर चला जाता है, अस्फल साफिलीन तक पहुंच जाता है। तो ऐसी सूरत में इंसान की सूझबूझ और चालाकी इसी बात में है कि वो निगाह रखे, अपने ईमान का जायजा लेता रहे, और हर वक्त इंसान को जायजा लेना है। ये जायजा ऐसी चीज है कि इंसान हर वक्त लेता रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है कि ला यज़नी वहुव मुमिन वला यस्रिक़ु सारिक़ु हिना यस्रिक़ु वहुव मुमिन, यानी इंसान चोरी करे तो चोरी की हालत में चोरी जो कर रहा है वो मोमिन नहीं होता, यानी गलत काम करते वक्त इंसान का ईमान इस तनज़्ज़ुल व पस्ती को पहुंच जाता है कि वो मोमिन बाकी ही नहीं रह जाता। तो इस तरह अगर इंसान का ईमान इतना कमजोर इतना पस्त हो जाए तभी वो ऐसी हरकत कर सकता है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस तरह से इस्यान और माफ़ियत करे कि जिन चीज़ों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम कर रखा है उनका वो इंतकाब करता रहे और ढलने से बेफिक्र होकर इंतकाब कर बैठे। ये इसीलिए इंसान करता है कि उसके दिल के अंदर से सीनों के अंदर ईमान बाकी नहीं। तो इंसान को ये फिक्र करनी चाहिए, हर मुसलमान को ये देखना चाहिए कि ईमान उसका हाल में वो घटने की सूरत में है कि वो बढ़ोतरी की तरफ जा रहा है। तो उन्होंने फरमाया कि इंसान की ये सूझबूझ की तरह उसकी चालाकी इस बात में है कि वो देखता रहे, कि वो जाने कि उसका ईमान बढ़ रहा है या घट रहा है। उसी तरह इंसान की ये भी फिक्र होनी चाहिए, उसकी ये सोच होनी चाहिए, उसकी ये सूझबूझ होनी चाहिए कि वो जाने कि शैतान के वसवसे कहाँ से आते हैं, शैतान किस अंदाज में किस रास्ते से बहका रहा है। दरअसल इंसान शैतान के बहकावे से गुमराही की तरफ जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मासियत का इत्काब कर बैठता है। शैतान ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये कह के आया है वो कि हम तेरे बंदे को गुमराह करेंगे, और उसका अल्लाह के बंदों से उसने बड़ी उम्मीद रखी है कि वो ऐसा करने में कामयाब हो जाएगा। और दुनिया के अंदर सूरत हाल देखते हैं कि वो अपनी उम्मीद में बहुत हद तक कामयाब है। इस सिलसिले की बातें भी, इस मफ़हूम की बातें कुरान करीम के अंदर भी मौजूद हैं। तो इंसान को ये देखना है, तो हर वक्त इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने ईमान का जायजा लेता रहे, निगाह रखता रहे। आइंदा आगे जो महीना दरपेश है इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन मौका देता है कि इंसान जायजा ले, और हर शख्स की कोशिश करता है कि अपने अमाल का जायजा ले, अपनी अखलाक का जायजा ले, अपनी ज़बान को देखे, अपनी निगाहों को टटोले। हर चीज़ पे इसकी निगाह होती है। ये इसलिए कि इंसान रोज़े से होता है, तो ईमान की हालत में हम होते हैं तो अपने ईमान को इनको टटोलना है और हमारा टटोलना है, हर लड़का हर घड़ी टटोलना है। कोई भी घड़ी इंसान की जिंदगी में आती है कि जब इंसान का ईमान
उससे उठ जाता है और गुनाह की तरफ बढ़ जाता है। इंसान की खलवतें ऐसी होती हैं कि जहाँ इंसान से गुनाहों का इर्तिकाब होता है, उस मौके पर भी इंसान को देखना है कि वो कैसे उसके कदम बहक रहे हैं, तो अपने बहकते हुए कदम को वो रोक ले। इंसान एक जानिब देखे कि शैतान का बहकावा कहाँ से आ रहा है, और साथियों को वो बेहतर से बेहतर तलाश करे। साथियों, इंसान के जो दोस्त होते हैं, जो अहबाब होते हैं, जो उसके महफिल में उसके ताल्लुक के लोग होते हैं, उनके जरिए भी इंसान को बहकावा मिलता है। और इस जमाने के अंदर इंसान जो खलवत के अंदर होता है और उसके हाथ में मोबाइल होता है और उससे वो दूसरों से टच में होता है, तो ऐसी सूरत में इंसान को बहकने का बहुत बड़ा इम्कान होता है। इंसान के हाथ में जो मोबाइल है उसके अंदर हर तरह की गलत चीजें भी मौजूद हैं और बेहतर से बेहतर चीजें, अच्छी से अच्छी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें और उसका एहसान करने की सूरतें भी वहाँ मौजूद हैं। लेकिन इंसान को देखना है कि उसका जो साथी है तन्हाई का, मोबाइल लेके वो बैठा हुआ है तन्हाई में, उसका साथी। इस जमाने में हम देखते हैं कि अक्सर लोगों का साथी यही उनका मोबाइल बना हुआ है। तो ऐसी सूरत में उसको बहुत एहतियात से इंसान रखे। देखिए कि कहाँ से इंसान को शैतान बहका रहा है कि उसकी निगाहें गलत चीजों पे आ जाती हैं, उसकी उंगलियां गलत चीजों को, गलत साइड को टच कर जाती हैं। इन चीजों को देखना है और सिर्फ अपने आप को नहीं देखना है, अपने गिरदोपेश में जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे भाई बंद हैं छोटे, उनके ऊपर भी निगाहें रखनी है। उनको भी समझाना है कि उन चीजों से महफूज कर, अपने आप को महफूज रखें, और महफूज करने की जो सूरत, जो तरीके और जो जराए और असबाब हैं, उन सबको अपनाएं। इंसान को इल्म हासिल करना, शरीयत का इल्म हासिल करे, इंसान कुरान करीम का मुताला करे, कुरान करीम की तिलावत करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करे, सुबह शाम की जो दुआएं हैं उनको इंसान कसरत से पढ़े, नवाफिल की, सब सुन्नत रवातिब की पाबंदी करे इंसान। ये चीजें वो हैं जो इंसान को गुनाहों से रोकती हैं। इसलिए कि नमाज का एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि वो इंसान को गुनाहों से रोकती है। एक तरफ तो वो चीज है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका हमको सवाब देगा, लेकिन दूसरी तरफ इसके अंदर बहुत बड़ी खूबी ये है कि हमको गुनाहों से रोकती है। तो हम खुद भी पाबंदी करें नमाजों की, और अपने अहबाब से कहें, अपने औलाद से कहें, हमारे जो लोग हैं उनको हम आमादा करें कि वो नमाज से गाफिल ना हो, नमाज की पाबंदी करें, सुन्नत रवातिब की पाबंदी करें, और जिस तक मुमकिन हो नवाफिल को अंजाम दें। इसलिए कि चीजें मुफीद हैं और बेहद मुफीद और बहुत जरूरी है। इंसान अगर इनसे गफलत करता है तो शैतान से धीरे धीरे करीब होता जाता है। इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से, अल्लाह के ताल्लुक से और अल्लाह के जिक्र से खुद को जिस कदर दूर करेगा, उतना ही शैतान की कुर्बत होगी। इस चीज को भी हम समझें और जानें, और इसको अपनी याददाश्त का हिस्सा बना के रखें, तभी इंसान बच सकता है, और तभी इंसान को दुनिया के अंदर सुकून मिलेगी, और आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन के जाएगा तो वहाँ पर इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बेहतर से बेहतर जगह मिलेगी। अल्लाह इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने तशरीह की है कि शरीअतुल ईमान फिल क़ल्ब अस्ल व साबितुन फरवा। उन्होंने कहा, अपनी किताब के अंदर लिखा है, बड़ी मशहूर किताब के अंदर, कि ईमान का जो तरफ है वो इंसान के दिल के अंदर होता है। उसकी जो असल है, उसकी जो जड़ है, वो वहाँ पैबस्त होती है, पूरी तरह से जमी होती है, और उसकी फरा जो है वो बुलंदी में आसमान में होती है। उसकी जो जड़ होती है वो तौहीद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मार्फत है। इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन को बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की मार्फत रखता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत उसके दिल में होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ईमान की, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इनाम की उसे उम्मीद और तवक्को होती है। ये सब चीजें इंसान के दिल के अंदर होती हैं, और इन्हीं की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान की वजह से वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की तरफ माइल होता है, और तमाम तर मासी से खुद को दूर करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और उसके इताअत की जानिब आता है। और जब इताअत का काम इंसान करता है, यही वो चीजें हैं जो इंसान के आमाल कहलाती हैं, और यही वो चीजें हैं जो ईमान के फरूह हैं, उसकी शाखें हैं, तो ये बुलंद होती हैं, और यही चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे चाहता है। और रमजान मुबारक का बाबरकत महीना जो हमारे सामने मौजूद है, इस महीने के अंदर ये चीजें होती हैं कि इंसान खुद को नेकी की तरफ माइल पाता है, माशरे के अंदर एक ऐसा माहौल पाता है कि वो सब लोग उसी इबादत के अंदर लगे होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र में, तलावत कलाम पाक में लगे होते हैं, और एक माहौल सा होता है। लेकिन माहौल सिर्फ रमजान का न हो, ये इंसान की जिंदगी का हिस्सा हो। एक मरतबा बड़ा मशहूर वाक़या हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से मनक़ूल है, मुसन्नफ़ इब्न शहबाब में उनका यह असर कि इस दिन नून इंसान आओ बैठो कुछ देर हम ईमान की बातें करें। उनका एक बहुत मशहूर बहुत मशहूर असर है, और जिसको उम्मन बयान किया जाता है। इसको हम ध्यान में रखें कि किस अंदाज में हम अपने ईमान को ताज़ा कर सकते हैं। वो सहाबी रसूल जल्लुल क़द्र साबित फरमाते हैं, इजलिस बिना नून इंसान,
आओ बैठा जाए, कुछ बातें की जाए कि हमारा ईमान ताज़ा, तो हमारी महफिलें जो लगे किसी के साथ हम हों, किसी महफिल में हों, और इंसान को महफिलें तलाश करनी है, अल्लाह के जिक्र की महफिलें जहाँ ईमान की बातें हो रही हों, अखलाक की बातें हो रही हों, कुरान करीम का तज़किरा हो, हदीसों का बयान हो, ऐसी महफिलें बहुत बाबरकत महफिलें होती हैं। इन महफिलों से अपने आप को हम करीब करें ताकि हमको ईमान की ताज़गी का मौका मिल सके। तो जब हम बैठे किसी के साथ बैठे तो कुरान करीम की आयत के मफ़हूम की बातें हों, हदीस रसूल की बातें हों, जो खुतबा हम सुनते हैं जुमा के अंदर उसको हम रिवाइज करें, उसको हम दोबारा बयान करें कि जब तुमने ये बातें सुनी थी तो इस पर हमको एक अंदाज में अमल करना है, इसे हमें ऐसे बरतना है। ये चीज़ें बहुत मुफीद होती हैं। लेकिन महफिलों के अंदर अगर हम बैठते हैं हर चीज़ से गाफिल होकर सिर्फ दुनिया की बात करते हैं और दुनिया की बात करके हम रुक जाते हैं, ऐसी महफिलें और ऐसी मजलिसें हमारे लिए आखिरत में बहुत ही अफसोस का बाइस बनेंगी। हम कभी अफसोस बनेंगे कि ऐसी महफिलों में हमने हिस्सा लिया। लेकिन अगर हमारी महफिलें बाबरकत होती हैं, उसके अंदर कुरान करीम का तज़किरा हो, आयतों का बयान हो, हदीस रसूल का बयान हो, तो ऐसी सूरत में ये चीज़ें हमारे लिए बहुत मुफीद होगी और आप में भी हमको इंशाअल्लाह उसका अजर मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम सबको माह मुबारक पहुँचाए और उस माह मुबारक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करने की तौफीक दे, हमारे अखलाक की, हमारे किरदार की इस्लाह फरमा दे। और ये अखलाक की और किरदार की जो इस्लाह हो वो देरपा हो, वो हमेशा के लिए हो। ये न हो कि अब रमज़ान हो जाने के बाद हम भूल जाएं और फिर हम कुरान पे आ जाएं। लेकिन अगर हमने अपने ईमान की आबियारी की है, उसको अगर हमने सींचा है अच्छी तरह से, उसको हमने नमो और तरक्की दी है, तो ये चीज़ें हमारे लिए मुफीद होंगी और आइंदा पूरे साल तक हमारे लिए काम आएंगी। तो आप दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।